इनके डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स. लिथियम एंड सल्फर. ठीक है, बनाया लिया आपके लिए. लिथियम इज 3 electrons, तो दैट मीन्स metal and non-metal. Lithium is 3 electrons, so that's 2. And एक उसका बायर शेल में होगा. That is about it. So it's going to be 2 electrons and then 1 electron. ठीक है, this is lithium. अच्छा, बोर्ड आज ग्लिच कर रहा है, so but it's actually hanging. तो उसको मुझे एक और डिवाइस पे करना पड़ेगा. अच्छा, sulfur has 16 electrons. 16 electron means let's try and draw 16 electrons. So that's 2. Then you're going to have 8, and then you're going to have 6. ठीक है, so this is what इसको सेट कर ले. So this is the other one. Okay, sulfur. So let's draw the electrons of sulfur. एक अगर dots में draw करें, the other one has to be drawn with crosses. So we're drawing and 16 electrons, so 2, 8, and 6. Now what's going to happen is, जो मैंने कल explain किया था, what's going to happen is कि one of them is in group 1, the other one is in group 6. One of them wants to lose how many electrons? It wants to lose a total of 1 electron. It loses 1 electron. और सल्फर को कितने चाहिए outer shell में? If you look at the outer shell of sulfur, it needs a total of 2 electrons. 2. ठीक है, so it needs 2 electrons. So it's going to try and gain 2 electrons. ठीक है, उसको 2 चाहिए. अब मैंने एक सेकंड पहले, अच्छा, सो उसको 2 चाहिए. अब मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि पहले ना आप आयंस बना दो. ठीक है, उसको छोड़ो कि उसने एक लूज करना है, क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड बी लॉस्ट बाय लिथियम वुड बी द वंस दैट वुड बी गेन्ड बाय सल्फर. तो आप उसको इग्नोर करो कि लिथियम इफ इट्स लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड सल्फर नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप लिथियम को एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कराओ. वो उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, that means it's going to form an ion which is going to have a charge of +1. So the ion would have a charge over here of +1. अच्छा, लेकिन लूज उसने एक ही किया है. सल्फर को कितने चाहिए? सल्फर को 2 चाहिए. सल्फर को आप 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करा दो. वाई कहां से, वो बाद में सोचेंगे. ठीक है, सो सल्फर इज गोइंग टू बी गेटिंग अ चार्ज ऑफ -2, राइट? तो और उसके बाद आई टोल्ड यू टू डू वन थिंग व्हिच इज कि the number of electrons that are being gained and the number of electrons that are being lost over here and the number of electrons that are being gained by sulfur, they have to be equal. क्योंकि अभी सोचना है कि लिथियम ने तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए. तो ये अनोमली खत्म करनी है. तो उसका एक सिंपल शॉर्टकट ये था, एंड द सिंपल शॉर्टकट वाज, इट वाज नोन एज द क्रिस क्रॉस मेथड, व्हिच वाज कि इसके ऊपर ये -2 का चार्ज नजर आ रहा है ना, 2, तो लिथियम को जाके 2 से मल्टीप्लाई कर दो. और इसके ऊपर अगर +1 का चार्ज नजर आ रहा है, तो आप सल्फर को जाके ना 1 से मल्टीप्लाई कर दो. अच्छा, उसका 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि एक सल्फर होना चाहिए. अच्छा, ये करने की जरूरत क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वाज लिथियम लूजिंग? जस्ट 1. तो अगर 2 लिथियम्स होंगे तो टोटल 2 अलग अलग लिथियम सोचो. एक लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन वो बाहर वाला लूज किया, तो दूसरा कोई और लिथियम होगा, उसने भी फिर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर वाला लूज किया होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितने हो गए? 2. तो वहां से सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए. ठीक है, मिनाइल, ये क्लियर है? Yes, sir. So this is how you're going to do this. ठीक है, कि आसान तरीका ये कि बजाय इसके कि आप इस कंफ्यूजन में पढ़ो कि who's going to lose how many electrons and how it's going to lose electrons, the simple method is do crisscross. ठीक है, let's do one more example. कि so this the one more example that I'm going to pick is, let's do magnesium and phosphorus. ठीक है, 15 electrons and this is 12 electrons. So I'm going to draw, I'm going to quickly draw magnesium first. So magnesium is 2 electrons, then it has a total of 8 electrons,
and then there's going to be two more electrons. So, and let me set this right 1 second. So 2, 8, and 2. So magnesium in the center, 2 electrons, 8, and then you have just 2 electrons in the outermost shell, right? What about phosphorus over here? Let's try and pick phosphorus is 15 electrons. So 15 electrons would be 3 shells, 2, 8, and 5. So that's 2, then 8, and then another one that's 5. So 2, 8, and 5. So 2 electrons, 8 electrons, and you have 5 electrons. Now the whole issue is, one is a metal, the other one is a non-metal. How many electrons does it want to lose? It loses 2 electrons. वो जो बाहर वाले outer shell के these 2 electrons, they're the ones that are going to be lost. अच्छा, phosphorus को कितने electrons चाहिए outer shell complete करने के लिए? It needs 3 electrons. It's going to try and gain. अच्छा, it's going to try and gain a total of 3 electrons, right? तो अभी मसला ये कि ये 2 lose कर रहा है, but the other one is trying to gain 3 electrons. तो I told you कि पहले इस confusion में ना पड़ो. What you just have to do is, this wants to lose 2 electrons, make it lose 2 electrons. That's it. And what charge would it get? It's going to get a charge of +2. It loses 2 electrons. The other one would gain how many electrons? It would gain a total of 3 electrons to complete its outer shell. It needed 3 electrons, so give it 3 electrons. That's it. वो कहाँ से आए हैं? We're not concerned at the moment. So this would become -3 because it's gaining 3 electrons. Now the last part is you have to make the number of electrons lost, because this is losing electrons and this one is gaining those electrons. The electrons are coming from this side. So how do you make this equal? So this one has a charge of 3. So go and multiply this other one by 3. That means you need 3 magnesiums. If you have 3 separate magnesiums, the total electrons lost, because each magnesium is losing 2 electrons. So if you have 3 magnesiums, the total electrons lost would be 6. और दूसरी साइड पे क्या होगा? You have, इसका चार्ज क्या है? +2 है, तो उसको जाके 2 से मल्टीप्लाई कर दो. That means you need 2 phosphoruses. One phosphorus gains 3 electrons. So if you have 2 phosphoruses, let's say there's another phosphorus somewhere else that also gains 3 electrons. So the total electrons gained are 6. ये दोनों equal हो गए. ठीक है? The amount of electrons that are being lost and the amount of electrons that are being gained are now equal. Is this clear? Minail clear? Rafiq clear? Yes, sir. Sir. Acha, so just let me check for Hassan just once. So we did all kinds of dot and cross diagrams. You have to be very good with dot and cross diagrams. Make sure questions would be of 2 types. If they're not, I mean, they might ask you to draw the outer shell only. If they're asking you to draw the outer shell, then just draw the outer shell. But a lot of times they don't. When you're drawing ionic dot and cross diagrams, a lot of times they are asking. They don't even state that. तो आपको फिर पूरा draw करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, anyways, properties के ऊपर ना हम काम कर रहे थे कि जी, I told you कि ionic lattices, I mean these are the properties. They're called giant ionic lattices. But whenever you draw this dot and cross diagrams, so sif, like NaCl over here, there's not just one Na ion and there's not just one Cl ion in the molecule. I mean, it's not even a molecule. It's called a lattice. Okay? It's called a lattice. It's a giant structure. उसका मतलब है कि ढेर सारे sodium ions होंगे, positive ions, और ढेर सारे Cl ions होंगे, negative ions. And positive attracts negative, so इसलिए वो एक दूसरे के साथ सारे जुड़े हुए होंगे, चिपके हुए होंगे, ठीक है? They'll be attracting each other. So and alternatingly arranged होंगे, मतलब
sodium ions would be attracted to Cl ions. Cl ions would be attracted to sodium ions. So they'll all be grouped together. और इसकी कोई लिमिट नहीं है. The crystal could be very large. The crystal could be, it's going to be a crystalline lattice structure. It could be a very small crystal. It could be a very large crystal. तो उसमें maybe there are 1000 sodium ions and 1000 Cl ions. Maybe it has 1 billion sodium ions, 1 billion Cl ions. So the size varies. ठीक है. So it's not 1 Na and 1 Cl ion. वो रेशियो होता है. ये जो 3:2 था ना कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो. This is the ratio in which the ions are going to exist. फिर हमने last time पढ़ा था they have high melting and boiling points. So we're done with that. अब अगली चीज जो हम पढ़े वो ये कि they're brittle. ठीक है. Ionic lattices. So let's study that. That when you have ionic lattices, पूरा नाम लिखना चाहिए. Giant ionic lattices. When you have them. So giant ionic lattices are brittle. Brittle का मतलब है कि if you, मतलब salt का crystal है, ठीक है, normal table salt. If you try and, अच्छा, if you try and crush it, तो वो break हो जाएगा, ठीक है. It's going to break into pieces. और break इस तरह होता है कि वो जैसा marble की tile है. Marble is a ionic lattice. Cement है, cement is a, या concrete है, your roofs are made out of concrete. ये सारे ionic compounds हैं. Some of them are very strong, ठीक है. Marble की tiles जो होती हैं बड़ी strong होती हैं, durable होती हैं. उसकी ड्यूरेबिलिटी का मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी तो उसका मतलब है स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा. जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, 2+ और 2- के बीच में ना अट्रैक्शन जो होगी दैट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग. अगर आयन के ऊपर +3 चार्ज है और -2 चार्ज है, दूसरे नेगेटिव आयन के ऊपर द अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग. तो समटाइम्स द लैटिस इज वेरी स्ट्रांग. 2-3 चीजों पर डिपेंड करता है. या तो चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, ठीक है. +1 और -1 के बीच में अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन +2 और -2 के बीच में अट्रैक्शन काफी ज्यादा होती है. ये फर्नेसेस में यूज होता है. फर्नेसेस इससे बनते हैं, ठीक है. खैर, कमिंग बैक टू दिस, ब्रिटल का क्या मतलब है. मार्बल की टाइल है. अगर आप हैमर करते हो ना मार्बल की टाइल को, तो पूरी टाइल एकदम से ना ऐसा लगता है कि but up to a certain point it's strong. Beyond, if you try to hammer it or apply a large force on it, तो एकदम से ना वो क्रश होके breaks into tiny pieces. तो that's what brittle means, ठीक है. वो पहले ही पता, लेकिन कंक्रीट का भी है कि look at your roof, ठीक है. it's a very strong buildings बनी होती है. concrete is very very strong. लेकिन if you apply a certain amount of force to it, तो वो एकदम से क्रैक करता है, पूरा कंक्रीट का पीस ही शैटर कर जाता है. so so why does it all of a sudden, अच्छा, मेटल में ये नहीं होता. मेटल का अगर पीस है ना, तो मेटल को हैमर करो ना तो बस वो एक एंड ही टूटता है. जैसा कार एक्सीडेंट होता है, ठीक है. तो कार एक्सीडेंट में ये नहीं होता कि if a car hits, let's say it hits the curb on the side, तो एक साइड पे डेंट पड़ता है ना. ये तो नहीं होता कि पूरी कार दो हिस्सों में क्रैक होके अलग होगी. so this is why I'm stressing, why are they so brittle. मतलब कि मेटल की कार बनी होती है, उसमें तो ये नहीं होता. उसमें तो अगर आप उसको एक साइड से, लेट्स से इफ अ कार हिट्स, तो वही साइड डैमेज होती है, पूरी कार तो नहीं पीसेस के अंदर टूट जाती. सो तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं कमेंट कर दूं कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड द ब्रिटलनेस. नाउ NaCl का ही क्रिस्टल ले लेते हैं. इफ यू लुक एट द NaCl क्रिस्टल, it's Na+1 which is attracted to, अभी इतना कोई स्ट्रॉन्ग लैटिस नहीं है. मतलब NaCl तो हाथों में भी आप क्रश कर सकते हो. +1 और -1 के बीच में कोई खास अट्रैक्शन होती भी नहीं है. अच्छा, so it's Na+1 attracted to Cl-1 attracted to Na+1 which is then attracted to Cl-1. राफे समझ आ रही है? और एक दो और. Yes, sir. अच्छा, ये सारे मिनाइल शोर आ रहा है आपके उस. अच्छा, so ये सारे Na+1 attracted to Cl-1 and so on.
तो अब ये अच्छा भला एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। नाउ द होल पॉइंट इज व्हाई डू दे ब्रेक अप इनटू पीसेस जब आप फोर्स अप्लाई करते हो? अच्छा, पहले तो थोड़ी बहुत फोर्स अप्लाई करोगे, कुछ नहीं होगा, सारे आयंस अपनी जगह पे स्टक होंगे। मतलब सोडियम आयन जो होगा ना, वो Cl आयंस, मतलब इधर से लेट्स से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो द Cl आयन वुड नॉट बी एबल टू मूव, क्योंकि सोडियम आयन ने उसको पकड़ के अपने साथ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। बट इफ यू अप्लाई इनफ फोर्स, all of a sudden what's going to happen is that the ions would slip. Let's say ये सारे ions ना, मैंने इतनी फोर्स अप्लाई की है, the ions have slipped, इस तरह हो गए, ठीक है। तो मैंने इधर से हैमर किया है और काफी फोर्स से हैमर किया है, तो ions all of a sudden have slipped in the structure. तो अगर एक लेयर स्लिप होती है, अब ये गौर से देखो कि इफ वो जो आयंस की अरेंजमेंट है ना जरा से भी खराब होती है, तो ये दो नेगेटिव आयंस एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो गए, ठीक है। बट दीज टू नेगेटिव आयंस आर नाउ राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। पहले ये नहीं थे इस तरह। पहले क्या था कि पहले डिफरेंट इशू था कि पहले दे वर नॉट टुगेदर। मतलब ओरिजिनली अ पॉजिटिव आयन वाज नेक्स्ट टू अ नेगेटिव आयन, राइट? पहले तो वो यहाँ पे थे, ठीक है, और सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। पर ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू अप्लाइड अ फोर्स, वो स्लिप करता हुआ इधर आ गया। अब अगर दो नेगेटिव आयंस एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, नेगेटिव आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। अच्छा, सिमिलरली पॉजिटिव आयंस भी हल्का सा भी अगर स्ट्रक्चर स्लिप करेगा ना, तो पॉजिटिव आयंस भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए, तो वो रिपेल करेंगे, तो एकदम से ना बीच में द होल स्ट्रक्चर वुड स्टार्ट क्रैकिंग अप, दो सेपरेट पीसेस के अंदर। राफे, बात समझ आइए? मिनाइल, डिड यू गेट दिस पॉइंट? Yes, sir. राफे, क्लियर है? One last. हाँ, Can you repeat this last point? ठीक है, मैं वो कह रहा था कि इनको जरा पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। आयोनिक लैटिस इस तरह होता है ना कि नेगेटिव आयन अट्रैक्टेड टू अ पॉजिटिव आयन, राइट? तो अभी तो फोर्स और रिपल्शन कोई नहीं है ना, ठीक है, दे ऑल अट्रैक्टेड, नेगेटिव आयन अट्रैक्ट्स पॉजिटिव आयन। राफे, ये बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब क्या होगा? मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ, मैं वो कह रहा था कि ये ब्रिटल क्यों होते हैं? कि अच्छे भले स्ट्रांग होते हैं, मतलब कंक्रीट है, अच्छी भली स्ट्रांग है, लेट्स से एक दीवार बनी हुई है, लेकिन उसको एक फोर्स से हैमर करो तो क्रैक खाली उस जगह पे नहीं होता, पूरी बिल्डिंग ही क्रैक कर जाती है, या पूरी कंक्रीट क्रैक कर जाती है। तो अगर फोर्स अप्लाई करोगे ना, और आयंस हल्का सा भी स्लिप करते हैं, ये लेट्स से एक लेयर स्लिप करके आगे चली गई है, तो राफे मुझे बताओ क्या हो रहा है? अब दो नेगेटिव आयंस बिल्कुल साथ साथ नहीं आ गए, Yes. और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, Repel. और वो दो सोडियम आयंस भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को, सोडियम में +1 है, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। तो Yes, sir. तो एकदम से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना पहले, वो इट हैज चेंज्ड इनटू अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर ही क्रैक करना शुरू कर देगा, ठीक है। Got it, sir. और इसीलिए ना, मतलब जब आप लेट्स से कंक्रीट को हैमर कर रहे हो, और कंक्रीट एक जगह से क्रैक करती है, तो वो खाली उस जगह से क्रैक नहीं करती, वो पूरा पूरा जो क्रैक होता है जस्ट गोज ऑल द वे, ठीक है। अच्छा, सो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट आयोनिक लैटिसेस आर ब्रिटल, और मतलब मार्बल की टाइल होगी, अच्छी भली स्ट्रांग होगी, अगर जमीन पे गिरेगी तो खाली एक पॉइंट से डैमेज नहीं होगी, वो पूरी टाइल ही शैटर हो जाएगी पीसेस के अंदर, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, another property that I wanted to discuss was कि that property was, मतलब डॉरेंट क्रॉस डायग्राम्स तो चलते रहेंगे, the other property was solubility, ठीक है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि the solubility of ionic compounds।
अच्छा, solubility of ionic compounds. Now, ionic compounds are all soluble to a certain extent. To a certain extent. ये आप बहुत आगे जाके शायद आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, there's a solubility table. Salts वगैरह, ठीक है, they are, उनकी जो solubility वगैरह है ना, वो उस टेबल में लिखी होती है. कुछ बहुत soluble होते हैं, कुछ बहुत insoluble होते हैं, ठीक है. मार्बल है जिस तरह, या कंक्रीट है, आयोनिक कंपाउंड है, वो तो पानी में डिसॉल्व नहीं होता. मार्बल के फ्लोर्स को यू वॉश देम, नथिंग हैपेंस टू देम. लेकिन टेबल सॉल्ट है, दैट्स हाईली सॉलेबल, ठीक है. सो सम आयोनिक कंपाउंड्स आर वेरी सॉलेबल. अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू डिसॉल्व एन आयोनिक कंपाउंड? कि लेट्स से देयर इज वाटर and you're trying to dissolve ionic compounds. और मैं एक छोटा सा क्रिस्टल लेता हूँ NaCl का. Na+1 is attracted to Cl-1 and Cl-1 is attracted to Na+1. So positive और negative ions एक giant ionic lattice है, एक छोटा सा क्रिस्टल है, वो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस आर ऑल अट्रैक्टेड टू ईच अदर. क्रिस्टल बना हुआ है. तो होगा क्या, अब नमक को पानी में डिसॉल्व करना है, तो आप क्या करते हो? फर्स्ट थिंग इज यू टेक अ स्पून और इसको विगरसली ना इसके अंदर स्टर करना शुरू करते हो. यू विगरसली स्टरिंग इट. स्टर करने से होता क्या है? उससे होता ये कि वो जो आप इतनी जोर जोर से स्टर कर रहे होगे ना, सारे बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे. मतलब सोडियम आयन उड़ता हुआ उधर जा रहा होगा एक कोने में, Cl आयन टूट के, मतलब ऑल दो सोडियम और Cl आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन आप चम्मच इतनी जोर से हिला रहे हो, ठीक है, और स्टरिंग इट सो विगरसली कि वो सारे आयन्स बिखर गए हैं, ठीक है. They've all scattered. सारे, कोई एक कोने में चला गया, कोई दूसरे कोने में, पानी के अंदर ना वो मिक्स हो गए, ठीक है. दिस इज सॉलिबिलिटी. तो चम्मच हिलाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना वो आयंस सारे आपस में चिपके रहेंगे एंड द क्रिस्टल वुड, मतलब वो क्रिस्टल आपस में बना रहेगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको विगरसली स्टर करो. मतलब उसको देख लो, एक पुट 1 स्पून फुल ऑफ सॉल्ट इन इन वाटर, तो वो सॉल्ट नीचे पड़ी रहेगी. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चम्मच हिला के उसको विगरसली स्टर करो. अच्छा, जब आप स्टर करते हो तो फिर दूसरा क्वेश्चन है, जब आप स्टरिंग रोकते हो तो ये सारे आपस में जुड़ क्यों नहीं जाते? दोबारा क्रिस्टल क्यों नहीं बन जाता कि सोडियम आयन जाके उसके साथ Cl-1 के साथ चिपक जाए, सोडियम आयन जाके Cl-1 के इस साइड पे, और ये, मतलब व्हाई डजंट इट हैपन कि जब आप चम्मच हिलाना बंद करते हो तो ये सारे आयन आपस में जुड़ के वापस क्रिस्टल क्यों नहीं बना लेते? मतलब जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है, वो क्यों नहीं होती? कि एक दफा जब वो चम्मच हिलाई है और NaCl का जो क्रिस्टल है उसके जो आयंस हैं, वो आपकी जो जोर जोर से आप स्टर कर रहे थे उसकी वजह से वो सारे आयंस पानी के अंदर बिखर गए हैं. तो व्हाई डोंट द आयंस, जब आप चम्मच हिलाना बंद करते हो, व्हाई डजंट द क्रिस्टल फॉर्म बैक अगेन? उसकी रीजन ये कि वापस क्रिस्टल बनना ना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि देयर आर thousands and billions of water molecule in between. तो अगर सोडियम किसी टाइम पे Cl- उनके साथ अट्रैक्टेड था भी, वो बीच में इतनी ढेर सारी चीजें आ गई हैं कि अब वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो शायद कभी एक दूसरे के साथ दोबारा मिल भी सके. तो जैसे ही आप स्पून, इफ यू स्टॉप स्टरिंग, चम्मच हिलाना बंद करते हो, द आयंस रिमेन स्कैटर्ड. मतलब सोडियम आयन को Cl आयन मिलेगा ही नहीं, वो बीच में इतने ढेर वाटर मॉलिक्यूल्स आए हुए हैं कि वो अगर वो अट्रैक्ट भी कर रहे थे ना, वो बीच में बहुत सारी चीजें आ गई हैं. So so they're going to remain dissolved. ये point clear है? Minhail, is this clear? Rafa, is this clear? Yes, sir. But sir, if we evaporate the water, then what would happen? हाँ, अब उस पे आते हैं. The next part है कि there's a concept called crystallization. कि how do I form the crystal back again? तो ये तो solubility होगी ना. तो वापस क्रिस्टल बनाने, अब दो तरीकों से बन सकता है, ठीक है. वन इज कॉल्ड इवेपोरेशन, कि एकदम से ना आप उसको स्ट्रांगली हीट करो, पानी सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है. सो लेट मी मेक द कंटेनर बैक अगेन. ये बीच में ना सोडियम आयंस थे,
और ये सी आयंस थे, सोडियम आयंस, ये सारे स्कैटर्ड हुए हैं, ठीक है, और बीच में ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स थे। अच्छा, अगर आपने ना ये पानी के मॉलिक्यूल्स, यू गेट रिड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर तो डेफिनेटली क्रिस्टल वापस बन सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अगर मैं तेजी से करूं वाटर मॉलिक्यूल्स को एकदम से ना सारों को स्ट्रांगली हीट करूं और इवेपोरेट कर दूं, तो ये सोडियम आयन और सी आयन को ना इतना मौका नहीं मिलेगा कि ये आपस में ना दोबारा से रीअरेंज होके क्रिस्टल बना ले। तो यूजुअली बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स नहीं बनते अगर आप बहुत तेजी से करोगे, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिला आप आपस में जुड़ने का। सो द बेटर वे इज, इंस्टेड ऑफ इवेपोरेशन, कि अगर आपको बड़े क्रिस्टल्स चाहिए, you only evaporate to saturation point. If you want to extract large crystals, और फिर उसको रख देते हो, cool it gradually and let it cool gradually. अच्छा, उसका मतलब ये कि अच्छा, इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे कि आप मेन वो पानी के मॉलिक्यूल्स थे ना जो इनको आपस में जुड़ने नहीं दे रहे थे, तो आपने ये करना है कि आपने तेजी से पानी के सारे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट नहीं करने, जस्ट इवेपोरेट सम ऑफ देम, मतलब इतने इवेपोरेट हो जाए कि ये जो सोडियम आयन है और ये सी आयन, ये उन पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो एक्वस स्टेट के अंदर वो स्विम करते हुए एक दूसरे के साथ मिल जाए, और फिर उसको ग्रेजुअली कूल करना है। यू हैव टू कीप इट देयर। तो थोड़ी देर रखना है ताकि ये सी लाइन भी आके, उसको अगर टाइम मिलेगा तो वो भी आके जुड़ जाएगा क्रिस्टल के साथ, ये सोडियम आयन भी स्विम करता हुआ पहुंच जाएगा, ठीक है। सो इट हैज टू बी अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज, तो ये अब आपके पास ना क्रिस्टल बन गया। तो उसमें क्या करते हो कि आप पानी को ना एकदम से इवेपोरेट नहीं करते, क्योंकि एकदम से इवेपोरेट किया ना तो सोडियम आयन एंड सी आयंस, दे वोंट गेट इनफ टाइम टू अरेंज देमसेल्व्स इन अ क्रिस्टल लैटिस। यू इवेपोरेट सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। सैचुरेशन वो पॉइंट होता है कि जहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स इतने कम रह जाते हैं कि द सोडियम आयंस एंड द सी आयंस कैन गेट बैक टुगेदर अगेन। एंड फिर उसको ना आप रहने देते हो, एक दिन तक ना रहने देते हो कि वो आराम से ना उसके अंदर घूमते फिरते एक दूसरे को ढूंढ ले, और वो ढूंढ ढूंढ के ना एक क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाता है, एंड द क्रिस्टल स्टार्ट्स टू ग्रो। ठीक है, इज दिस क्लियर? सारों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो मतलब दिस इज Actually, sir, आप प्लीज ये दोबारा रिपीट कर दीजिए पॉइंट। कौन सा, ये क्रिस्टलाइजेशन वाला, ये पहला वाला? यस सर। अब बिनाइल, ये क्लियर है कि पानी के मॉलिक्यूल्स बीच में से निकाल दो तो ये आयंस आपस में जुड़ जाएंगे वापस और क्रिस्टल बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो हमने पानी के तो मैं बस ये कह रहा था कि पानी के मॉलिक्यूल्स को ना एकदम से स्ट्रांगली इवेपोरेट करोगे ना, और एकदम से लेट्स से पानी के मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे, तो इन सोडियम आयन और सी आयंस को इतना चांस ही नहीं मिलेगा टू कि वो आपस में जुड़ जाए। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि आप इवेपोरेट टू सैचुरेशन पॉइंट करते हो। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है कि आप सारा पानी इवेपोरेट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत रहने देते हो, ताकि, क्योंकि एकदम से अगर सारा इवेपोरेट किया ना, मतलब इधर मैं कर लूं कि सोडियम आयंस, सी आयंस, सोडियम आयंस, अच्छा, तो आप बीच में से थोड़े से मॉलिक्यूल्स निकाल देते हो वाटर के, इवेपोरेट कर देते हो, मतलब वो सारे इवेपोरेट हो गए। मेरा ये क्लियर है बात? यस सर। ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सोडियम आयंस और सी आयंस ना वो एक दूसरे को ढूंढ लें। मतलब अब मैं, पहले पानी बहुत ज्यादा था तो वो एक दूसरे को मिल ही नहीं रहे थे, अब मैंने पानी के मॉलिक्यूल्स कम कर दिए, काफी ज्यादा मैंने इवेपोरेट कर दिए। अब काफी ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि सोडियम आयन इधर पानी के अंदर मूव कर रहा होगा तो उसको सी आयन मिल जाएगा, वो सी एल माइनस वन आयन उसके साथ आके जुड़ जाएगा। फिर वो इधर घूम रहा होगा, सोडियम आयन इस साइड पे घूम रहा होगा, उसको सी एल आयन मिल जाएगा, सी एल आयन को सोडियम आयन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ना ग्रेजुअली अगर कूल करोगे ना इसको, और थोड़ा बहुत पानी निकाल दोगे, तो वो क्रिस्टल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेरा हेल्प क्लियर है? यस सर। तो ये क्रिस्टल बन गया वापस। तो खैर इसको हम ना एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने डिस्कस करनी थी,
वो ये थी कि आयनिक कंपाउंड्स की ना सॉल्युबिलिटी बहुत वेरी करती है। सॉल्युबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? The important thing about solubility is कि you have to break the ions, ionic lattice. चम्मच ये जो नमक सॉल्ट टेबल सॉल्ट का जो क्रिस्टल है वो किससे आप मतलब ये आयन स्कैटर करते हो? चम्मच हिला हिला के करते हो ना। लेकिन अब सोचो कि मार्बल है, मार्बल पानी में क्यों नहीं डिसॉल्व होता? कि इनको हम हटा देते हैं Na+1 और Cl-1 को कि मार्बल अच्छा मार्बल NaCl के जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं ना वो बड़े वीक होते हैं। +1 और -1 के बीच में कोई खास अट्रैक्शन तो होती नहीं है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg2+ है और वो O2- के साथ अट्रैक्टेड है और O2- जो है वो Mg2+ के साथ अट्रैक्टेड है और वो फिर O2- के साथ दोबारा अट्रैक्टेड है। अच्छा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। यानी इसका मतलब है ये जो क्रिस्टल है, दिस इज अ वेरी स्ट्रांग क्रिस्टल। +2 और -2 के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी। अब ये आप चम्मच जितनी मर्जी जोर से हिला लो, ये आयन अपनी जगह से नहीं लेंगे। ये एक दूसरे के साथ इतने स्ट्रांगली चिपके हुए ना और इतने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है ना कि इन्होंने अलग नहीं होना, इन्होंने स्कैटर नहीं होना। मतलब ये आप चम्मच बहुत ही जोर से ना और बहुत ही फोर्स से हिलाओगे ना तब जाके शायद ना ये Mg2+ और O2- ना शायद अलग हो जाए। ठीक है, तो ये वाला काम इसमें मोस्ट लाइकली होगा ही नहीं, तो इसलिए ये इनसॉल्युबल है। मतलब इट डजंट रियली डिसॉल्व, मतलब इम्पॉसिबल है डिसॉल्व करना इसको। इसलिए मार्बल को भी डिसॉल्व करना इम्पॉसिबल है कि मार्बल में जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रांगली जुड़े हुए होते हैं। सो कैन एनीवन हियर मी? Yes, sir. ये पिछला पॉइंट Sir, Yes, समझ sir. आया था? Yes. तो मैं ये फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इधर से सॉल्युबिलिटी से। ठीक है, ये कल हम इधर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वो टाइम भी मेरे ख्याल से इंटरनेट का भी कोई इशू हो गया। चले, ठीक है सर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।